Welcome welcome everyone to the next part of the problem series of chapter 1 chemistry. So in this session we are going to see next questions. I think so till I we have solved in next previous session. J से start करते हैं. J says states that 24 gram of carbon react with some oxygen and make 88 gram of carbon dioxide. Find out how much oxygen must have been used. Okay, so basically carbon reacting with oxygen to give you carbon dioxide, this is the basic process. In this process 24 gram of carbon if added with x gram of oxygen will give you 88 gram of carbon dioxide. According to law of conservation of mass, mass in the reactant is equal to the product. So 24 plus x must be equal to 88, and x is equal to 88 minus 24, which give you 64 gram. So x equal to 64 gram. Is this clear? Another way to solve this question is कि say this carbon having atomic number 12, so 12 gram is added with oxygen with atomic number 16, so 16 to the 32 gram to give us carbon dioxide, and it weighs 44 grams. So if 24 gram is given, how much carbon dioxide will produced? So from here ratio and proportion you will have here 88 double, and how much oxygen is involved? So again 32 to the 64, it is also double. So hope so from here you are very much clear regarding the given things. Moving on to the next problem, K. So in this problem they have asked you to calculate a number of atoms in each of the following. So nitrogen is having average atomic mass 14U, while sulfur is having average atomic mass 32U. From here we can conclude a statement that 1 mole of nitrogen must be equal to 14 gram of nitrogen, and it will contain 6.022 into 10 to the power 23 nitrogen atoms. As नंबर ऑफ नाइट्रोजन के एटमिक कैलकुलेट करने के लिए कहा है. नाउ पहला क्वेश्चन, 0.4 मोल नाइट्रोजन में कितना होगा? नो इशू एट ऑल. 1 मोल में इतना दिया है तो डिवाइड कीजिए यहाँ से 0.4 मोल में कितना. ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0.4 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23 divided by 1, which goes on to 24088. इधर 3 और ये 4 प्लेस के पहले डेसिमल, सो यहाँ पे सो इट इज 2.4088 into 10 to the power 23 into 10 to the power 23.
Okay. Now from another given, that is sulfur. Sulfur 32U is average atomic mass. So 32 gram of sulfur hereafter will call as 1 mole of sulfur, and it will contain 6.022 into 10 to the power 23 sulfur atoms. So from here questions is regarding 1.6 gram of sulfur में कितने एटम. So 1.6 ग्राम में कितने एटम. By taking cross multiplication we can have question mark is equal to 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 1.6 divided by 32. So it is 20 times. ओके 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3.011 इंटू 10 to the power 22 atoms, and here is your answer. So hope so you have clear these two question. These are very simple question if we once know what is the logic behind it. Okay, so let's move on to next question. आप इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए इसके बाद वाले. Question M. In 2 moles, L, 2 gram of metal is burned in oxygen to give 3.2 gram of its oxide. Okay, so a metal is burned in presence of oxygen to give metal oxide. So 2.0 gram metal if burned, 3.2 gram of oxide बनेगा. 1.42 gram of same metal, 1.42 gram of same metal if heated, then a steam give 2.27. So 2.27 gram of metal oxide. Which law is verified? Okay. So इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने देखा कि जो मास है वो ऐड ऑन हो रहा था, लॉस के अंदर एक लॉ जिसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा, तो जो भी आप कंपाउंड लोगे उस कंपाउंड के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स है ये फिक्स परसेंटेज ऑफ मास में अवेलेबल रहेंगे. ये वेरीफाई करने के लिए हम करते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये मेटल कितने परसेंट काउंट करता है. सो 2.0 डिवाइडेड बाय 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना है. और यहाँ पे इन सेकेंड केस में जब 2.27 बन रहा है कंपाउंड, तो इसमें से मेटल 1.42 मल्टीप्लाइड बाय 100 बना के कितना परसेंट तैयार करता है. ओके, विल गो विथ कैलकुलेटर टू हैव इजी सॉल्यूशन. देखते हैं. So it's 2
0.0 divided by 3.29 multiplied by 100. So it's 60.790. Okay, so it's 60.790%. Now from here, let's again have a calculator with us. 1.42 divided by 2.27 equal to 62.55%. So it's 62.55%. Now in this case, one thing which we have missed is कि this is 3.2 gram. Okay, not 29. So again यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं. ये हुआ फिर 2.0, क्योंकि परसेंट सेम आना चाहिए, दैट्स वाई, डिवाइडेड बाय 3.2. यस, अगेन इट्स 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 62.5. सो इट्स 62.5 एंड हियर बोथ दोनों के परसेंटेज सेम है. अब देखते हैं कि ये लॉ कौन सा है. ठीक है, लॉ आपको याद होने चाहिए यहाँ पे, इसीलिए ये बुक से बता रहा हूँ ताकि जितने लॉ है एक बार आपके रिवाइज हो जाए और उसमें क्या क्या बातें आती है. जो लॉ था वो है कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट, जिसमें रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट मास रहेगा. नेक्स्ट जो लॉ है जिसके बारे में हमने प्रॉब्लम देखा, ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जैसे ये कंपाउंड है तो कंपाउंड के अंदर का जो एलिमेंट है ये फिक्स प्रोपोर्शनेट ऑफ मास रहेगा, आप कहीं से भी लीजिए. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का भी प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में एक से ज़्यादा अगर कंपाउंड बनाता है तो दूसरा जो एलिमेंट होगा वो सिंपल रेशो में मिक्सअप होगा. लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये जो है क्योंकि गैस सॉलिड के जैसी मेजर मास में नहीं की जा सकती तो वॉल्यूम के रिगार्डिंग ये वाला लॉ दिया हुआ है. ओके, और इसके बाद में आखिरी में आएगा एवोगैड्रो. तो यहाँ पे ये वाला हमारा हो चुका है प्रॉब्लम. नाउ मूविंग ऑन to the next problem. Before solving that problem, let's clear the sheet, and here we are. So next problem M states that 2 moles of acetaldehyde. Now जैसे फॉर्मिक एसिड हमने देखा था फॉर्मिका से बनने वाला HCOOH, तो वैसे ही HCHO was formaldehyde. फिर एसिटिक एसिड हमने देखा था CH3COOH, ऐसे ही एसिटल्डिहाइड रहेगा HCOOH, सॉरी इट्स HCHO, CH3CHO. सो एसिटल्डिहाइड दिया है. कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड कितने होंगे. सो 2 मोल ऑफ CH3CHO means 2 times Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23, that is 12.044 into 10 to the power 23, 1.2044 into 10 to the power 24. इतने तो ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ मॉलिक्यूल रहेगा. ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने रहेंगे ये पता करना है. तो
तो सबसे पहले इसमें कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, और ये 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 4 मोल्स ऑफ कार्बन। 4 मोल मतलब 4 टाइम्स दिस नंबर, सॉरी 4 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट किया, तो देखिए सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है और ऐसे 2 मोल है, मतलब टोटल 4 मोल, और 4 मोल को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको मोल्स ही पूछा है तो 4 मोल्स में आपका आंसर आया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, अब हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में है 4 और एक मॉलिक्यूल में 4 है, ऐसे 2 मोल्स मतलब 2 टाइम्स, एक मोल मतलब इतना नंबर, तो 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स इतने नंबर रहेंगे, तो ये हो गया हमारे 8 मोल्स आंसर, तो सेकंड आंसर भी यहाँ आ गया। थर्ड वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, ऑक्सीजन का भी सेम, एक ऑक्सीजन है ये 2 है तो यहाँ पे 2 मोल्स आ गया। इसके बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड कितने होंगे, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड 12.044 इंटू 10⁻23 हमने पहले निकाला था। ठीक है, सो होप सो you have understood all these things which are given over here. So here we are ending our session. इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं जल्द ही।